नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहर प्रचोदयात् तन्नो ज्वरहर प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अखिल भारतीय बाल सारथीनी જે કાર્યશાળા પ્રેરણાપીઠ મુકામે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ઉપસ્થિત બાલ સારથી અને બાલ સભાને પ્રોત્સાહિત કરનાર અને કામને વેગવંતુ બનાવનાર યુવા સંત પંકજદાસજી, નરેશભાઈ, શાંતિભાઈ, જસુભાઈ અને પ્રકાશનના મિત્રો અને હર્ષુભાઈ અને કચ્છની સમગ્ર ટીમ, પૂનાથી નરેશભાઈ આવ્યા છે અને સર્વે અમારા ટ્રસ્ટીગણ, દેવજી મામા અને દૂર દૂરથી પધારેલ बाल सारथी भाइयों ने बहनों। पूर्व भूमिका तो पंकजदासे आपी, क्यांथी शरूआत थई, क्यां सुधी आपणे पहोंच्या छीए अने क्यां सुधी जवानुं छे। शरूआतनी खबर होय छे पण अंतनी खबर नथी होती। अंत कदीए कोई वातनो होतो ज नथी। सफलतानो पण अंत होय नहीं कि बस आटલું કર્યું એટલે હવે પૂરું થઈ ગયું, એવું કદી માની ન લેવાય। એટલે આપણે ક્યાં અટકીશું એ નથી કહેતા તારે, પણ આગળ વધવું છે, વધવું છે, વધવું છે। બાલ સારથી આજે છો ને તમે, તમારા પછી બીજા આવશે, બીજા પછી ત્રીજા આવશે, પણ આપણી આ બાળ સભા તો ચાલુ જ રહેશે। આપણે પરિવર્તિત થઈ જઈશું। હું પણ કદાચ નહીં હોઉં, તમે પણ કદાચ નહીં હો, પણ 40-50 વર્ષે પણ છે ને આ સતપંથની અંદર થયેલી આ બાળ સભાઓ હંમેશા ચાલુ રહે એ આપણો નિર્ધાર છે। કારણ કે આપણી આ નૂતન જે પેઢી છે અત્યારે, એ અત્યારે 5 વર્ષથી 15 વર્ષના જે બાળકો છે, એ બાળકોને આપણે જે સંસ્કાર આપવાના છે, એ બાળકો મોટા થશે એટલે એના બાળકો માટે એમની જવાબદારી આવશે। આમ પેઢી દર પેઢી આ સંસ્કાર આપવાની જે પ્રક્રિયા છે એ ચાલુ રાખવી પડશે જ। તમે વિચાર કરો કે આજથી 50 વર્ષ 60 વર્ષ પહેલાં હવે કોઈ બાળ સભાઓ થઈ નથી, બાલ સારથીએ નહોતા, છતાંય પણ આ તમે બધા રતન છે ને કેટલા મામૂલા પેદા થયા। કેમ થયા? કારણ કે એ વખતે વાતાવરણ કેવું હતું ને અત્યારનું વાતાવરણ કેવું છે। તમને કોઈને સાચવવા નથી પડ્યા, તમને કોઈને કેળવવા નથી પડ્યા। સ્વયંભૂ કેળવણી આપણા ઘરમાંથી મા બાપે આપી અને આસપાસના વાતાવરણે આપી। અને એ વખતના જે શિક્ષકો હતા, હું અમારા વખતની જે વાત કરું, અત્યારે તો એક પીરિયડે બદલાય શિક્ષક, પણ એ વખતે તો છે ને એક જ શિક્ષક હોય, આ સ્કૂલમાં હોય ને એક જ શિક્ષક, પણ એ ભણવાની સાથે સાથે ચારિત્ર ઘડતરનું એટલું જ ધ્યાન આપતા। એ વખતે શાળામાં જે પ્રવૃત્તિઓ થતી, એક સામૂહિક પ્રવૃત્તિઓ થતી। મને ખબર છે અમારા મેત્રાલ કંપામાંથી અમે ચાલીને મેત્રાલ જતા, એ યાદ નથી કે પગમાં ચંપલ હતા કે નહોતા એ, કારણ કે ચોમાસામાં વરસાદ પડતો હોય, નાની નાની કીડી પરથી દોડતા દોડતા જવાનું હોય, એ વખતે સ્લીપર તો મને ખબર છે કે હતા નહીં।
તો એવા સમયમાં બગીચો તૈયાર કરવાનો હોય સ્કૂલમાં, તમે જાતે બધા ભેગા થઈને છોકરાઓ કૂવો ખોદ્યો હતો 10-15 ફૂટ ઊંડો, ને એમાં પાણી આવ્યું હતું ને એ પાણીથી અમે ગલગોટાના છોડ અમે ઉછેરતા હતા, અને જે મજા આવતી હતી ને, એટલે એક ઘડતર હતું. શિક્ષકો પણ પ્રેમ પણ આપતા અને મારતાય ખરા. એ સોટીના છે ને, આ પાછળ 2-2 સોળ પડી જાય ને એટલી સોટીઓ ખાધેલી છે તોફાન કરીએ ત્યારે, પણ એમાં ઘડતર થતું. આજે એ પરિસ્થિતિ નથી. આજે આપણા બાળકો કેવી રીતે ભણે છે, ક્યાં ભણે છે? આપણે 3.5 વર્ષનું થાય ને, માંડ 4 વર્ષનું તો હજી થાય નહીં, ત્યાં પહેલાં તો મૂકી દઈએ. અમારું બાળક કેજીમાં ભણે છે, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, પછી ફર્સ્ટમાં જાય. ફર્સ્ટમાં જાય એટલે ફર્સ્ટ ને સેકન્ડમાં જાય એટલે બધી સ્કૂલો બધી એવી છે, આપને ખબર છે, ફી તગડી લે પણ શિક્ષણ તો કેવું હોય. પછી રિઝલ્ટ આવે એટલે A++, પર્સન્ટેજ અંદર લખેલા 98%, 99.5, એટલે આપણને એમ થાય કે આપણો દીકરો કેટલો હોશિયાર છે, દીકરી કેટલી હોશિયાર છે. હકીકતમાં તો એ છે ને, માર્ક્સ મૂકવાના છે તમને રાજી કરવા માટે, કે એ સ્કૂલ તમે છોડો નહીં એટલા માટે. પણ જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય એટલે બાળકની સાચી ક્ષમતાનો આપણને ખ્યાલ આવતો જાય કે બાળકની અંદર બુદ્ધિમત્તા કેટલી છે. 5th में आवे, 6th में आवे, 7th में आवे. सॉरी महाराष्ट्र, मैंने आपको वादा किया था कि मैं हिंदी में बोलूँगा. कहाँ बैठे आप? हाथ ऊंचा करें. कितने हैं? 15-20 बोलते थे ना आप तो. हाँ, कोई बात नहीं. तो आप हिंदी में चालसे ना थोड़ा. हाँ, तो बच्चा जब 5th में 7th में आता है तो रिजल्ट जो आता है तो उसमें जो 99, 98 नहीं आए तो वो 60, 70 आए, तो हम बोलते हैं कि क्यों इतना रिजल्ट कम क्यों आया? तो मम्मी निराश हो जाती है, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता प्रकट होती है तो हम उसके ऊपर दबाव डालते हैं, ट्यूशन करवाते हैं. तो बच्चा स्कूल से आता है तो 2 घंटा ट्यूशन में जाता है, फिर भी उसको टॉर्चर चालू रहता है. बच्चे को खेलने का वक्त नहीं मिलता है, बच्चा कोई अपनी मनचाही प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, प्रेशर डाला जाता है. और जब 10th में आता है इतना प्रेशर बढ़ जाता है. मेरे पास कई लड़का लड़कियां आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची 10th में है, आशीर्वाद दो. अरे भाई 10th में इतना दबाव क्यों करते हो? जो लिखना है वो लिखने दो. मेहनत की है अगर तो वो लिखेंगे, और 11th में आएगा तो मेहनत करेगा, 12th में आएगा तो ज़्यादा मेहनत करेगा. तो उसकी क्या है कि उम्र भी है, समझदारी भी आ जाएगी और वो अपना काम खुद कर सकेगा. क्योंकि अब भी पढ़ाई में बहुत प्रेशर आ गया है. ये इतना प्रेशर होने से बच्चा सांस्कृतिक प्रवृत्ति में और अन्य ज्ञान प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता है. तो हम प्रयत्न ये कर रहे हैं कि पढ़ाई तो होनी चाहिए, जरूरी है. अपने बच्चे होशियार बने ये भी जरूरी है, अपनी कारकिर्दी अच्छी बनाए ये भी जरूरी है, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए ये भी जरूरी है. मगर अभी पंकज दास जी ने बात की कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है. बच्चे बाद में बड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नासीपास हो जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं. जो सहन शक्ति है उसमें वो कम होती जाती रही है, और इसकी वजह से उनका जो स्वभाव है चिड़िया हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, और इस वजह से एक पारिवारिक संवेदनशीलता होती है वो कम होती जाती रही है.
बच्चे मानते नहीं हैं। फरियाद है सबका, मम्मियों का, बच्चे हमारा मानता नहीं है। कहते हैं तो गुस्से हो जाते हैं, विरोध करते हैं। क्योंकि ये क्यों होता है कि हमने उससे धर्म के बारे में, धर्म के लक्षण क्या होते हैं, एक सच्चा इंसान बनने का क्या तरीका है, वो शायद सिखाने में कमी रह गई है। तो बच्चे साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित बने और इतर प्रवृत्ति में भी वो काबिलियत प्राप्त करे, इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। आप बाल सारथी है। सारथी का मतलब है उसके जीवन को अच्छी तरह मार्गदर्शन दे। जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण खुद थे। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण खुद थे, इसीलिए अर्जुन कभी कहीं हारा नहीं, युद्ध में नहीं हारा। मगर जब मानसिक तरीके से जब भी हारा तो सारथी ने संवारा, सारथी ने प्रोत्साहित किया, अपना धर्म क्या है वो बताया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, दोनों सैन्य आमने सामने आ गए थे, तो अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरुजी भीष्म पितामह, अपने भाई सब, मामा सब दे के वो मानसिक रूप से टूट गया कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूं, जो सामने मेरे सगे हैं, सब गुरुजन है, उसको मैं मार के क्या प्राप्त करूंगा। मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और वो मानसिक हताशा में आ गए और बैठ गया। तब सारथी ने संभाला, उठ खड़ा हो, ये थोड़ा चलेगा, युद्ध नहीं करना है। तू किसके सामने लड़ रहा है? देख, ये सब अधर्मी है और अधर्मी का नाश करने के लिए तो मैंने जन्म लिया है, और मैं जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य में तो आप निमित्त है। करने वाला, कराने वाला समझ ले मैं हूं, तो एक निमित्त है। और उसको प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने पूरी गीता का जो ज्ञान है वो प्रकट किया कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म क्या है, तू अपना धर्म संभाल। और कर्म का बोध दिया, ज्ञान का बोध दिया, भक्ति का बोध दिया। अंत में भगवान ने क्या कहा? मैंने तुझे जो कहना था वो कह दिया, अब तुझे जो करना है वो कर। अब तुझे जो करना है वो तू कर। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। तो अर्जुन समझ गया, पूरी बातें समझ गया। जो निराशा थी वो चली गई, फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो फिर उत्साहित हो गया और ज्ञान के माध्यम से वो युद्ध लड़ा और युद्ध जीता। सारथी था अच्छा, इसलिए जब सारथी अच्छा होता है तो ये संसार का जो युद्ध है हर किसी को लड़ना है। अपने बच्चे बड़े होंगे ना तो इस संसार में कई तरह की परेशानियां आएगी, ऐसे कई बाबतों का मुकाबला करने पड़ेगा। उसके अभ्यास के अलावा, अपनी कारकिर्दी के अलावा भी कई ऐसे प्रश्न आते हैं। तब जो ये ज्ञान है जो हम देना चाहते हैं बच्चे को, वो ज्ञान उसको मदद करेगा। वो याद करेगा सारथी को, मेरे सारथी कौन थे,
मेरे सारथी ने मुझे क्या दिया, मेरे सारथी ने मुझे प्यार दिया, मुझे ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, उसके विवेक मुझे दिया, मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लीडर बनाया, मुझे लीडर बनाया। जो लीडर होता है वो ही लीडर बन सकता है। तो वो लीडर बनाया और जीवन के हर संघर्ष को झेलने की ताकत मुझे मिली। तो तब भी वो याद करेगा सारथी को, ये मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ। माँ होती है, माँ हर तरह की शिक्षा देती है, वो पढ़ाती भी है, संस्कार भी देती है, बच्चों को डांटती भी है, प्यार भी करती है, फिर भी वो पूरा समय नहीं भी दे सकती है। और सभी माँ इतनी काबिलियत वाली नहीं हो सकती है, मगर बच्चे को ज्ञान तो देना जरूरी है। तो इसलिए जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसी ये जो मां बन के जो संसार में कार्य कर रही है, वो सारथी है, बच्चों की मां है, एक दूसरी मां है, एक घर में है और दूसरी है जो बच्चों को घर के बाहर माँ का प्यार देती है, शिक्षा देती है और संप्रदाय का ज्ञान देती है, जीवन जीने की ताकत देती है। वो जो माँ है वो तुम हो, सारथी। बच्चे का जीवन है आपके हाथ में है। सभी बात करते हैं कि अभी जो वक्त बहुत बुरा है, बच्चे 15-16 साल की एक माधुरी अवस्था है उसकी, उसमें जो भी मिले वो अपना लेते हैं। अच्छी चीज़ें मिली तो ठीक है, जीवन उसका सुधर जाएगा, मगर जो बुरी आदतें, बुरी मित्रता प्राप्त हो गई तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। बिगड़ने के लिए बहुत है। हम सिर्फ मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल है ठीक है, बरोबर, 80% तो मोबाइल उपयोगी है, 20% इसमें ऐसे वर्जन है जो हमें उसको देखना भी नहीं चाहिए, कि अपनी कामुकता बढ़ाते हैं और कोई ऐसी गंदी बातें इसमें से सीखने मिलती है, वो हमें ठीक है, उसको पर्दा डाल दो। बाकी उसका सदुपयोग बहुत है, तो सदुपयोग करना चाहिए। अगर कोई बोले कि मोबाइल का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, ये गलत बात है। मैं नहीं मानता हूँ कि हर इंसान दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी दृष्टि जाती है तो मोबाइल में जाती है। ठीक है, सदुपयोग करो, व्यर्थ टाइम मत बिगाड़ो। जितना जरूरी है, खुद आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो मोबाइल में इतना सा है, अब गूगल है, अब चैट जीटीपी भी आ गया है, उसमें आपको जो ज्ञान आपको चाहिए वो सब ज्ञान मिल सकता है, हर तरह का, जितना डिटेल में जाओ इतना मिल सकता है। मैंने पंकज दास जी को कहा था कि बाल वार्ता में कितनी चाहिए, 200-500 निकालो, गूगल निकालो, बोधदायक बाल वार्ता निकाला, अंदर तो बहुत सी बाल वार्ताएं आ गई, कई तरह की, तो वो अंदर है। और जब मोबाइल नहीं था तो हम पुस्तक का उपयोग करते थे, पुस्तक पढ़ते थे, पुस्तक लाना पड़ता था, और मिले तो ठीक है, न मिले तो हम वंचित रह जाते थे। तो अभी तो सभी पुस्तक इसमें है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं हम। और बच्चे सही टाइम उसका संस्कार लेने में जाएगा ना, तो बहुत उपयोगी होगा। मित्रता बहुत अच्छी करनी चाहिए बच्चों के लिए,
सिखाना चाहिए कि अच्छे मित्र के गुण क्या होते हैं, मित्र किसको बनाना है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण भगवान का मित्र कौन था पढ़ाई के समय, आप जानते हो ना कौन था? सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या होता है? सुदामा, सु એટલે अच्छा, दामा मतलब दमन जो करता है, जो अपनी इंद्रियों को दमन करता है, अपने पर कंट्रोल रखता है, जो विवेक को जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो पूरी समझदारी जिसमें है, वो सुदामा कहता है। सुदामा का अर्थ ये है कि अपनी इंद्रियों पर काबू, मन पर काबू रख के जो जीवन जीता है वो सुदामा है। तो कृष्ण को सुदामा जैसा मित्र मिला। तो सुदामा ने क्या किया कृष्ण के लिए? आपने स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं शॉर्ट में मैं बताऊंगा। तो एक चोर चोरी करने के लिए रात्रि को एक झोंपड़ी में गया, तो अंदर कुछ मिला नहीं, गरीब की झोंपड़ी थी, एक वृद्धा अंदर रहती थी। तो अंदर से चने, कच्चे चने थोड़े तो पोटली में रखे थे, तो चोर पोटली लेके भागा। तो भागा, वो जग गई, बुढ़िया जाग गई, वो भागा, भाग के आया वो आश्रम में, सांदीपनी के आश्रम में आया। तो वहीं भी माताजी देख गई, सुदामा गुरु जी की पत्नी, सांदीपनी की पत्नी। तो उसने भी कि कौन है कौन है, तो घबरा के वो चना की पोटली थी वहाँ रख के भाग गया। तो सुबह देखा तो ठीक है, अच्छा है, वो बच्चों को दे देंगे। तो गौवें चराने के लिए जाते हैं कृष्ण और सुदामा, तो उनको दिया गया, लो तुम भूख लगे तो ये चने खा लेना। तो वो सुदामा ने देखा कि इस ये चना है वो श्रापित है, जो बुढ़िया के घर में से चोरी की थी उसने श्राप दिया कि जो खाएगा उससे सत्यानाश हो जाएगा, वो भिखारी बन जाएगा। तो सुदामा ने तो समझ लिया कि अगर ये कृष्ण जो खाएंगे तो वो भिखारी बन जाएंगे। वो तो कौन है? वो त्रिलोक के नाथ है। अगर श्राप लगेगा वो त्रिलोक की संपत्ति बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण भगवान के पास संपत्ति होगी तो सारा विश्व का कल्याण करते हैं वो तो वो मैं नहीं होने दूंगा। जो जब गए जंगल में बारिश आई तो सुदामा ने पहले वो मैं ये रखता हूँ, मैं संभालता हूँ। तो सुदामा ने सारे चने खा लिए। किसके लिए? अपने मित्र को बचाने के लिए। और परिणाम ये हुआ कि सुदामा को श्राप लगा और वो भिखारी ही बन गया। क्या भगवान नहीं जानते थे? उसको भी पता था। हाँ? मगर सुदामा को ये जीवन में ये आना था, ये हकीकत आनी थी, इसलिए कृष्ण बोले नहीं। पर जब वक्त आया, हम सब जानते हैं भगवान ने बदला क्या दिया। सब देना चाहते थे भगवान, बहुत ऐश्वर्य दे दिया। मित्र ऐसे होने चाहिए, सुदामा जैसे। अपने बच्चों को ऐसे मित्र के साथ रखो। सांदीपनी, उसका नाम भी क्या है? सांदीपनी मतलब देदीप्यमान है, जो जिसकी ज्योत ज्ञान की जलती रहती है, वो सांदीपनी है। तो गुरु भी ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर ज्ञान की ज्योत जलती रहे। तो ये बात है बच्चों के लिए। संस्कार की कई बातें हैं। हम बच्चों को कहानी सुना के भी उसके अंदर विवेक जागृत कर सकते हैं। ये बहुत संस्कार बचपन में पड़ता है। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी के साथ
खेतों में बीच में से निकल के जा रहे थे, तो किसी और का खेत था, तो वो क्या है, वो चोला बोलते हैं, चोली, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं आप, इतनी बड़ी फली होती है, हाँ, तो वो खेत में उसका एक पौधा आया, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको ले लिया। तो मेरे पिताजी ने मुझे डांटा कि ये बेटा अपना खेत नहीं है, ये नहीं खानी चाहिए, ये अपना नहीं है। तो आज भी मुझे वो चित्र याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे सूचना दे दी कि ये नहीं करना चाहिए। तो बचपन में जो शिक्षा दी जाती है वो हमेशा याद रहती है, और रोकना टोकना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। कई माताएं अपने बच्चों को जो शरारत करते हैं, कुछ चोरी छोटी छोटी चोरी करते हैं, तो रोकती नहीं है, पर इसमें से ये वृत्ति है, बढ़ती है, बच्चे आगे जाके बड़ा चोर बन सकता है। तो मालूम पड़े कि इसमें इतनी बुरी आदत आ गई तो वहाँ से रोक दो। लाड प्यार देना है तो और बात है, मगर बुरी आदतों से उसको बचाना अपनी फर्ज है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और हम जो कहानियाँ हैं, तो कहानियों के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे हमने बचपन में सुनी थी कहानी, तो बाप और बेटा एक आम के खेत में गए, और आम बहुत अच्छी थी और खाने के लिए तैयार हो गई थी, पेड़ पर पकी हुई। तो पिता ने कहा चलो खानी है तो हम थोड़ी ले ले। तो फिर वो गए, आम ली, और पिताजी बोलने लगे बेटा कोई देखता तो नहीं है ना, तो हम खा लें इसे। तो बच्चा बोला पिताजी आप कहते थे ना कि भगवान सब जगह है, तो भगवान तो देखते हैं ना, भगवान तो देखते हैं ना। तो ये कोई सुनी हुई बात है, बच्चों को याद आती है कि ये नहीं करना चाहिए, चोरी है। तो बचपन में ये संस्कार मिलता है तो वो पूरे जीवन में भी याद रह जाता है। ऐसे कई कहानियाँ आप बच्चों को कह सकते हैं। कोई आपकी निंदा करे, आपकी टीका करे, हाँ, तो इसके लिए भी एक छोटी कहानी मैंने सुनी थी कि मेढक की सवारी आगे जा रही थी, ड्राउं 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 करके आगे जा रहे थे, पीछे 2 मेढक थे, तो वो साथ में चल रहे थे। इतने में बड़ा खड्डा आ गया, दोनों गिर पड़े। तो फिर सबने देखा कि ये दोनों कहाँ गए, तो देखा तो वो खड्डे में गिर गए हैं। तो वापस आए सब, अरे वो छलांग लगाओ, जोर मारो, छलांग लगाओ। तो लगाते थे मगर वो खड्डे में से बाहर आ नहीं सकते थे। कई प्रयत्न किए पर निष्फल गए। तो फिर बाहर वाले ने बोलना शुरू कर दिया आप बाहर नहीं आ सकोगे, नहीं आ सकोगे, आप चाहे इतना प्रयत्न करो आप बाहर नहीं निकल सकोगे। तो इसमें से एक तो हार गया, और वो खड्डे से भीतर भी एक बड़ा खड्डा था, उसमें गिर पड़ा वो। और जो दूसरा जो था वो प्रयत्न चालू रखने लगा। तो बार वाले बोलते रहे आप निकल नहीं पा सकोगे, मगर वो तो बस अपना प्रयत्न चालू ही रखा। फिर एक बार जोर से छलांग लगाई और बाहर आ गया। तो सब बोलने लगे हम कहते थे कि तुम बाहर निकल नहीं सकोगे, तो आप कैसे बाहर आ गए? तो क्या हमारी बात सुनते नहीं थे? नहीं, मैं बहरा हूं मैं बहरा हूं, मैं सुन, मुझे ऐसा लगता था मैं आधा बहरा था, आपकी सुनाई नहीं देती थी आवाज़। तो मैंने इसलिए कहा आप प्रोत्साहित कर रहे हो मुझे, एक और छलांग लगाओ, एक और छलांग लगाओ। तो मैं वो बस हिम्मत करके वो छलांग लगाता रहा और मैं सफल हो गया। अगर वो भी पूरा सुनने की क्षमता वाला होता तो क्या होता, वो भी निराश हो जाता।
तो कहने का मतलब कि ये निराश नहीं होना चाहिए। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कोई आपकी टीका करे, निंदा करे तो निरुत्साह नहीं होना है। हम अपना काम करते जाएंगे। हम सफल होके ही रहेंगे, सफल होना ही है। हम सफलता के लिए ही पैदा हुए हैं, सफलता हमारा कर्तव्य है। जीवन में ध्येय प्राप्त किया है कि सफल होएंगी ही। अगर आपने वो ऐसा निश्चय कर दिया कि सफलता मेरे लिए है और मैं सफल होऊंगा ही, तो एक दिन सही तरीके से आप सफल होगे ही। आपने शायद पुस्तक पढ़ी होगी, द सीक्रेट, रहस्य। पढ़ा है किसने? बहुत कम। पढ़ना। इसमें विचार की शक्ति क्या होती है वो बताया है। जिसका संकल्प मजबूत होता है वो अवश्य सफल होता है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर आपने सोचा नहीं है मैं क्या बनूं, तो क्या बनोगे आप? अगर आपने निश्चित कर लिया है कि मुझे ये बनना है, तो क्या होता है? आपका संकल्प इस ब्रह्मांड में जाता है। ब्रह्मांड की शक्ति बहुत अनंत शक्ति है। ब्रह्मांड में ये शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड को चलाती है। ये परब्रह्म शक्ति है। अगर आपने अपना संकल्प परब्रह्म को दे दिया कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा दृढ़ निश्चय है, बस भेज दो उसको ऑर्डर, तो वो ब्रह्मांड की जो पराशक्ति है आपके लिए, आपका संकल्प पूरा करने के लिए कार्य करना चालू कर देगी। और आप इंतज़ार थोड़ा करो, सफलता की सीढ़ी आपके सामने आ जाएगी। उसमें उदाहरण दिया है कि जैसे आप एक होटल में जाते हैं, अच्छी होटल है, 3 स्टार 5 स्टार, तो आप जाते हैं तो सिटिंग लेते हो, वेटर आता है, पानी का ग्लास लाता है, फिर मेनू देता है आपको। आप मेनू देखते हैं, ले लेगा, ये खाने की चीज़ है, ये सब्जी है, ये रोटी है, ये है, आइसक्रीम है, कुछ कई तरह की अंदर वानगी का समावेश किया हुआ है और रेट भी लिखा हुआ है। तो वो आप देखते रहते हो, वो खड़ा है वहाँ, तो क्या फिर आप बुलाओ तो वो आता है, फिर आप उसको ऑर्डर लिखाते हो तो वो लिख जाता है। लिख के जाता है, तब वो अंदर रसोई घर में जाता है, ऑर्डर देता है। आधा घंटा कम से कम लगता है, आधा पौना घंटा, और आप बैठे रहते हैं वहाँ, इंतज़ार है, आपको पक्का विश्वास है कि हमारी जो मांग वाली डिश है अवश्य आएगी। तो क्या लाता है? पहले पापड़ देता है, प्याज देता है, थोड़ा मसाला देता है, आप खाते बैठते हैं और विश्वास है कि आएगा, और फिर बाहर में आता है और आपको मिलता है। मतलब क्या हुआ? डिमांड, आपने डिमांड की, वेट किया, डिमांड वेट एंड गेट, आपको मिला। वैसे ही है, आपकी शक्ति जागृत करो, मांगो परमात्मा से, मिलेगा। जो कार्य करते हैं उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो कार्य जो शुरू किया है वो हमारी जो समाज की पूरी संस्कृति को विकास करना, अपने अगली आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। ये छोटा सा काम नहीं है। जब आपकी 3-4 पीढ़ियाँ संस्कारित बनेगी, सच्चे सतपंथी जब बनाना है अगर आपको, तो आप नींव की ईंट बनेगी, मतलब पाया के पत्थर। जो शुरू किया है, जो शुरू करते हैं ना, उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, संघर्ष भी ज़्यादा होता है, लोगों की सुनना भी पड़ता है। कोई लोग ऐसे कहेंगे भी, ये क्या तूत लगाया है, ये क्या करते हो आप, बच्चों का टाइम बिगाड़ते हो, ऐसा भी कहने वाले मिलेंगे। बच्चों का टाइम नहीं बिगाड़ते हो, उसका जीवन नहीं बिगड़े ना, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। बच्चों का टाइम बिगाड़ते नहीं है, जीवन सुधारने की बात है यहाँ। तो ये सब अपने हाथों से होने वाला है।
पंकज दास जी को हमने कहा था कि बाल शिविर की बातें आती थी कि चलो एक साल में एक दिन बाल शिविर होती थी। इसमें क्या होता था कि मंत्र का पठन थोड़ा गणा 2-3 दिन की शिविर थी। इसमें बच्चे 3-4 मंत्र सीखते थे और उसका लेसन लेते थे। बस इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो इससे हमको संतोष नहीं था। बच्चों का सर्वांगी विकास करने के लिए कई तरह की शिक्षा की ज़रूरत होनी थी। तो इसलिए हमने इसके लिए एक पुस्तिका भी होनी चाहिए कि बाल सारथी तैयार तो हुए मगर उस बच्चों को लेसन क्या दे। तो उसके लिए प्राइमरी टीचिंग का बुक हमने तैयार किया। इसके बाद दूसरा बुक बन रहा है, वो संतों का जीवन, चारित्रशील व्यक्तियों का जीवन चरित्र। मतलब एक हफ्ते में आप एक बार सुना सको, मगर मतलब 52 संत चरित्र की बुक हम ये प्रसिद्ध होने वाली है। तो हर हफ्ते आप एक जीवन चरित्र सुना सको। वह बाल वार्ता, वो तो मैंने आपको बताया कि गूगल से निकालो और बच्चों को ये बाल वार्ता इतने अच्छे ढंग से बच्चों के सामने पेश करो कि बच्चे सुनते ही रहे। क्योंकि बच्चे शब्द को सुनते हैं पहले। आपका शब्द किस ढंग से जाता है उनके हृदय तक, और वो बच्चे उस शब्द के आधार पर वो चित्र की कल्पना करते हैं। आप जो बोलते हैं ना उसका अंदर चित्र हो जाता है। आप ऐसा बोलते हैं कि एक हाथी था, जंगल में जा रहा था, हाथी बहुत मस्तीखोर था, पागल हो गया था, कितने झाड़ को गिरा दिया, कितने इंसान को गिरा दिया। तो वो उसके चित्र में आ जाएगा। हाथी है, हाथी दौड़ता है, हाथी झाड़ पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है, वो चित्र बन जाता है उसके अंदर। ऐसी कोई भी वार्ता हो, जब मैंने मेढक की बात की तो मेढक की बात करूँगे तो उसको मेढक याद आ जाएंगे। मेढक कैसे होते हैं? तो आप इसमें ले सकते हैं मेढक कि रेनी सीजन में मेढक आ जाते हैं, बड़े अपने घर में भी आते हैं, ड्राउं ड्राउं करते हैं। हाँ, वो मेढक होते हैं। तो वो पूरी उसके मेढक याद आ जाएंगे और सारी जो बात कहोगे ना तो पूरा इंतज़ार से सुनेंगे, वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। वो बचपन में जो सुना है वो जवानी आते हुए भी वो जाता नहीं है। तो ये सब बातें हमको बच्चों को बतानी है। कई तरह का ज्ञान है। जितना लेसन ज़्यादा करेंगे इतना कम ही होगा। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा भोजन दे। कि काय का भोजन खाने का तो आप बहुत अच्छा खिलाते हो। अब तो पहले हमको तो है ना, महीने में एक बार मिठाई मिलती थी और कभी कभी बिस्किट मिलता था, कभी कभी, समझे ना। वो 1 पैसे की गोली वो सफ़ेद आती थी देवजी भाई, एजमेंट वाले क्या बोलते हैं, तो वो भी कभी मिल जाती ना तो खुश हो जाते थे। अब तो बच्चे हैं ना, आप कुछ भी दो ना, ये नहीं चाहिए, इसमें क्या नहीं है, ये नहीं है। बच्चे बस वो सब बहुत मिल जाता है उसको। पर ये भोजन की थाली देना है संस्कार की, और ये संस्कार आपके हृदय से प्रकट होंगे और बच्चों के हृदय तक पहुंचेंगे। मैं क्या बोलूँगा, आप माँ है, बाप है। जैसे गुरु की जो जवाबदारी है, गुरु होता है तो गुरु माँ होता है, गुरु बाप होता है, गुरु मित्र होता है, गुरु सब कुछ होता है अपने लिए। तो आप भी बच्चों के गुरु है, माँ भी है, गुरु भी है, मित्र भी है।